A lot of people have questions about what shadow work is all about. And everybody has their perceptions, everybody has their ideas, and problem is everyone is groping in the dark. Now, what exactly is shadow work all about? When you say shadow work, it doesn't necessarily mean to remove negativity. It means to remove your shadow work is not when you delete things from your life. Shadow work is when you delete things from your heart, and there are steps to it. Hi Erudite, hi Ansh, hi Naveen. So I'm not live on YouTube because my channel is banned. So I'm going to record this and put it up on YouTube. But welcome back, and let's get down to shadow work. So there are a lot of steps and a lot of things when it comes to shadow work. Shadow work is deleting, or let's say healing. I wouldn't say deleting. Hello, ma'am. Hello, Karan. So healing parts of you that hurt you, healing parts of you that have given you pain in the past or in the present. It could mean right from childhood. Sometimes for some people, it also means from past life. Some people have a lot of baggage from past life as well. So how do you do that? No, I am not on YouTube because my channel is banned. I am not able to do a live or upload anything on my YouTube Guineanaja channel. Although I can do it on my Mystic Pal channel, but I don't want to do that. I will just upload this tomorrow. I think tomorrow I should be able to. So I will upload the recording on Guineanaja channel. So according to me, I did say hello to you, Karan. So according to me, first part is that you heal yourself from your past. That is step one. Because if you are unable to do that, then whatever other healing that you do, it will keep bouncing back. There is, you'll have to keep groping with that, in the dark, and it won't have the kind of effect it needs to have. Now, somebody recently spoke about, oh, you should do a lot of meditation and you should forgive yourself and all. Yes, you need to forgive yourself. You need to forgive others, but you need to forgive yourself before you forgive others. Because somewhere down the line, और मुझे ये हिंदी में बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में दूसरा वीडियो बना दूंगी. Somewhere down the line, you may blame others, but inherently you are actually blaming yourself. And because you don't want to accept it, you are playing the blame game of blaming others. There could be a lot of things, जैसे आपने कुछ नहीं किया है, ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो you can blame yourself for that, or your subconscious mind could blame yourself for that. So first of all, you need to forgive yourself. To forgive yourself, you need to love yourself. Now, what does shadow work mean in basically what happens when you do shadow work? When you do shadow work, you learn to love yourself, you learn to accept yourself, and if you are unable to do that, then you will be just going on and on for months and years and still getting nowhere. So shadow, हमारी परछाई को shadow बोलते हैं, and वो आपका हिस्सा है, आपकी गलतियां आपका हिस्सा है,
आपके गुनाह आपका हिस्सा है, आपकी कमी आपका हिस्सा है, उन सभी चीजों के लिए, for all of that that you've done, you've said, the mistakes you've made, you need to first forgive yourself. You need to love yourself. And then you can come to step 2 of forgiving the others. आपको अपने अंदर झांकना है. Yes, you need to do meditation, but only doing meditation is not enough. A lot of people are unable to meditate, they are unable to focus on their breath because उनके दिमाग में दुनिया भर की चीजें चल रही हैं. ये हुआ था, वो हुआ था, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है. ये सब क्यों? क्योंकि दिमाग शांत नहीं है. Your mind is not at peace and you're thinking about 2000 different things in that one moment. You don't think it's 2000 different things. You probably think it's just 4 things, but no. At the back of your mind, there's 2000 different things happening. And दिमाग के अंदर ना जैसे तार उलझ जाती है ना, ऐसे उलझन हुई होती है दिमाग के अंदर. अब वो क्यों होती है ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में समझा चुकी हूँ, but then I thought it's better I make a separate video on shadow work so that there may be other people out here who may need to learn about it. जो उलझने दिमाग में होती हैं, जो सोच मेडिटेशन के वक्त आपके दिमाग में चल रही होती है, all of that is garbage that you're holding in your mind because you're unable to throw it out. Hi Soaring Above. Hi Kalra Auntie. How are you? So it's the garbage in your mind that you are unable to throw out. So what you need to do is take one string at a time. जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे और आपके दिमाग में 5, 6, 8, 10 एक फिल्म की तरह चल रही है, अच्छा ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, पर ये क्यों हुआ, उसमें से एक तार पकड़ लो, आने दो उसे आपके आंखों के सामने, आपके दिमाग में, आपके दिल में, उसे आने दो. उसकी आई एम फाइन, थैंक यू, उसकी एक तार पकड़ लो. Go to the depth of that. Think about why, think about when, think about the pain and heal it. Feel that pain. उस दर्द को पूरी तरह से महसूस करो. अगर वो कोई इस तरह की चीज है जो आपको दर्द देती है, अगर वो गुस्सा दिलाती है, तो उस गुस्से को पूरी तरह से महसूस करो. उस वक्त उस मेडिटेशन में ये मत सोचो कि अरे मैं ट्रांस में नहीं गई, मैं ये सोच रही हूं, मेरे दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, मेरा मेडिटेशन अधूरा रह जाएगा. नहीं. This is also part of getting to that level where you want to go. So at that point, you pick up that thread, you feel it completely. चाहे वो 20 साल पुरानी बात क्यों ना हो या 2 घंटे पहली बात क्यों ना हो, वो आपको परेशान कर रही है, इसलिए आपके दिमाग में है. तो उसे पूरी तरह से महसूस करो. वो गुस्सा हो, दर्द हो, रोना है तो रो लो, चिल्लाना है तो चिल्ला लो. पूरी तरह से महसूस करने के बाद जब आपका दिल थोड़ा सा ठंडा हो जाए या आपको थोड़ा सा सुकून महसूस हो, तब आप खुद से ये पूछो कि आपको इस चीज से तकलीफ क्यों हो रही है, गुस्सा क्यों आ रहा है, दर्द क्यों आ रहा है. What is it inside you that is causing this pain, anger, regret, guilt, whatever it may be? There has to be something which is inside you. वो आपका हिस्सा जिसे दुख हो रहा है, जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसका ईगो मचल रहा है, जिसको गिल्ट हो रहा है, कोई भी फीलिंग्स जो हो रही हैं, वो भी आप ही का हिस्सा है. So you need to accept that part of you. You need to hug yourself. अगर वो एक एग्जाम्पल अगर दूं, तो जब आप 10 साल के थे,
आपके किसी पड़ोसी फ्रेंड ने आपके साथ झगड़ा किया था या आपके बारे में गॉसिप फैलाई थी, कुछ बुरा भला कहा था और आप उसे आज तक माफ नहीं कर पा रहे, कल अचानक आपने उसे देख लिया और आपके दिमाग में वो यादें ताजा हो गई। जब आप बैठे मेडिटेशन के लिए तो वो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं और आपको अब भी गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, उस पूरे किस्से को याद करो। कभी कभी जब समय बीत जाता है तो यू नो व्हेन वी it's too many years behind, you look at that thing, you think about it and you laugh at it and remember, oh, the way I reacted at that time, the anger, the pain, the hurt, why did I react like that? What is it inside me that made me react like that? Then you understand yourself, you accept all your negative emotions, you accept that part of you which brought up those negative emotions. Hi Shobit, हर चीज के पीछे, हर इमोशन के पीछे एक वजह होती है जिसके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको उस वजह की तरफ ध्यान देना है। तो आपने उसे याद किया, हाँ मैं हिंदी में दोबारा कर लूंगी, हिंदी में दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी शुरुआत इंग्लिश में हो चुकी है। ओके, ऑल राइट। सो शैडो वर्क के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ और उसके अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शैडो वर्क क्या होता है। अब इसे इंग्लिश में शैडो वर्क कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। शैडो का मतलब है परछाई, और अपनी परछाई के ऊपर काम करना, उसका उपचार करना। अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने ऊपर काम करने के कुछ स्टेप्स हैं। आप पहले क्या करोगे, आप लोग जनरली बोलते हैं कि ओ दुनिया में नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो, मेडिटेट करो, ये वो कहना बहुत आसान है, ऐसा होता नहीं है। मेडिटेट कर लिया तो क्या परछाई वो मतलब क्लियर हो गई, ऐसा नहीं होता है। परछाई का मतलब है आपका काला हिस्सा, मतलब एक है आपका अच्छा हिस्सा, एक है आपका बुरा हिस्सा, जो हर इंसान में होता है, अच्छे से अच्छे इंसान में होता है। तो उसका उपचार कैसे किया जाए, वो उपचार का मतलब है, वो उपचार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो परछाई वाला हिस्सा जो है, वो काला हिस्सा जो है, आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, आपके दिल को अंदर ही अंदर दुख दे रहा है। और जब तक आप उसका उपचार नहीं कर दोगे तब तक आपका दुख, आपका दर्द दिल से नहीं जाएगा। जब तक आपका दिल से दुख और दर्द नहीं जाएगा, आप चाह के भी कितने भी अच्छे इंसान बनना चाहो, कभी ना कभी वो चिढ़, वो गुस्सा, वो रोना, वो चीजें आ जाएंगी। और अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता। जब मैं कहती हूं कि एक अच्छा इंसान, मतलब कि वो इंसान जिसके मन में सुकून है और दुख दर्द के बजाय प्यार है। So I'm just trying to adjust the light so that my face doesn't look dark on this YouTube video, because I don't think I'll be able to do it again. So सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके आज तक की जिंदगी में जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, आपको दुख देती हैं, उन चीजों को लेकर आपको अपने दिल का उपचार करना है। उन चीजों को लेकर दिल का उपचार कैसे किया जाता है, उन चीजों को लेकर दिल का उपचार करने का मतलब है, जब आप मेडिटेशन करने बैठे, या अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप किताब लेकर बैठे लिखने के लिए, उसके अंदर लिखें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप बस बैठें
और सोचें उस बात को लेकर, उस अपने उस हिस्से को लेकर कि मुझे फलाने टाइम पर इस बात पर गुस्सा आया था, क्यों आया था और क्या हुआ था ऐसा, या मुझे दुख हुआ था, मुझे दर्द हुआ था, क्यों हुआ था। एक बार जब आपने वो सोच लिया, या आप मेडिटेशन करने बैठे और वो बात आपके दिमाग से नहीं जा रही, या कोई ऐसी बात आपको याद आ गई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे मेडिटेशन से पहले, लेकिन वो आ गई दिमाग में, तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, अवचेतन दिमाग। तो आप उस कड़ी को लेकर पहले उसका उपचार करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में समझें, उस पूरे हादसे को या उस पूरे अनुभव को पूरी तरह से जिएं। उस पल में, अकेले में, उस अनुभव को पूरी तरह से जिएं। वो गुस्सा, वो दर्द जो आपने तब महसूस किया था, उसे दोबारा पूरी तरह से महसूस करें। रोना है रो लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, 2-4 बर्तन तोड़ने हैं तोड़ दो, निकाल दो अपने अंदर से पूरी तरह से बाहर। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, खुद को माफ करना। Why did I allow this to happen to me? मैंने अपने साथ ऐसा होने क्यों दिया। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बोला कि हाँ मेरे साथ ऐसा करो, मैं परमिशन देती हूं, लेकिन उस वक्त जब किसी ने आपका दिल दुखाया, उससे पहले उस इंसान ने जो किया वो आपके बस में नहीं था, आपने उन्हें रोका नहीं, तो वो एक तरह से कहा जाता है कि मैंने होने क्यों दिया। पहले तो खुद को माफ करो, क्योंकि दूसरों को माफ करना आसान है, खुद को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग दुनिया से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करना किसी को नहीं आता। खुद से प्यार करने के नाम पे सेल्फिश मोड में चले जाते हैं हम लोग। तो पहला आया उस अनुभव को जीना, उन इमोशंस को जीना, भावनाओं को जीना। दूसरा आया खुद को माफ करना। खुद को माफ करने के बाद आता है सामने वाले को माफ करना। उसको लेकर आपके दिल में जो घृणा हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, जजमेंट्स हो सकती हैं। जजमेंट्स जब हम करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए, उसको हम अपना नहीं पाते, इसलिए उसे छुपाने के लिए हम दूसरों को जज करते हैं। जब आप दूसरों को जज करना छोड़ दोगे तो समझ लो कि आपने दूसरों के जजमेंट्स की परवाह करनी छोड़ दी। जब आप दूसरों के जजमेंट्स की परवाह करते हो तभी आप दूसरों को जज करते हो, तभी आप उन पे उंगलियां उठाते हो। तो दूसरों को माफ करना, इसमें वक्त लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होता, एक मेडिटेशन में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, समय लगेगा। क्योंकि यहां आपने एक अनुभव के साथ या एक भावना के साथ, एक इमोशन, एक एक्सपीरियंस के साथ अगर आपने अपने आप को हील किया, वहां से बाहर निकलोगे आपको दूसरी याद आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको हर अपनी जिंदगी के हर इंसान के साथ हर अनुभव को लेकर हील करना है, नहीं। अगर आपने 1-2 भी कर दिए तो उसके बाद आपको उस इंसान के साथ आपके अंदर जो अंधेरा है उसका उपचार करना है कि इस फलाने इंसान के साथ मेरे दिल में को लेकर मेरे दिल में नफरत क्यों है, गुस्सा क्यों है, रिग्रेट क्यों है, गिल्ट क्यों है, जो भी है। उसके बाद आता है कि ठीक है, हमने अपना उपचार कर दिया, हमने लोगों को माफ भी कर दिया, हमने खुद से प्रेम करना सीखा, उसकी कोशिश की। आप शीशे के सामने खड़े रहते हो, एफर्मेशंस करते हो, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, आप खुद से कहते हो आई लव यू, एक अपनी आंखों में देखकर खुद से कहते हो आई लव यू। लेकिन सिर्फ वो काफी नहीं है। आपको शीशे में खड़े रह के अपनी बुराइयां देखनी है,
और उन बुराइयों को अपनाना है। आमतौर पे जब कोई उंगली उठाता है ना कि तुम में ये कमी है और ये बुराई है, हम कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरा ऐसा नहीं है। तो हम अपनी बुराइयों को अपना नहीं पाते। तो इसलिए खुद से प्यार करने के लिए जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो और बोलते हो ना आई लव यू, तो उससे पहले शीशे के सामने खड़े होके अपने अंदर के अंधेरे में झांको। मुझ में जो गुस्सा है वो कहां से आया, क्यों है, उसका मैं कैसे उपचार कर सकती हूं। एक एक करके भावना को लो। गुस्सा किस वजह से है? जलन की वजह से है। ठीक है, तो पहले जलन को हैंडल कर लेते हैं। जलन किस वजह से है? इनसिक्योरिटी की वजह से है। ठीक है, तो फिर पहले इनसिक्योरिटी को हैंडल कर लेते हैं। जैसे जैसे आप खुद से ये सवाल पूछते जाओगे, क्यों क्यों मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा किस बात पे आता है, क्यों आता है, जलन होती है तो जलन क्यों होती है, जलन जब होती है तो मुझे कैसा महसूस होता है, मुझे दर्द होता होगा, अपने अंदर कोई कमी महसूस होती होगी, अपनी किस्मत से और भगवान से नाराजगी होती होगी। इस तरह की बहुत सारे भाव और बहुत सारी बातें आपके दिल में आती होंगी। उन चीजों को आपको एक एक करके लेना है, लेकिन जो भी भावना आती है उस भावना को आपको एनालाइज करना है कि जब, ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मैं किसी को मिस करती हूं तो मुझे बहुत रोना आता है। मुझे रोना क्यों आता है? जब मुझे रोना आता है तो मैं कैसा महसूस करती हूं। अब आप बोलोगे रोना आता है, मिस कर रही हूं, तो अभी इसमें महसूस क्या, मतलब यही तो महसूस है? नहीं, इसके पीछे भावना कुछ और है। और इसके पीछे भावना होगी शायद कि मैं अकेलापन महसूस करती हूं। अकेलापन क्यों महसूस करती हो? क्यों महसूस करती हो? क्यों महसूस करती हो? 10 बार पूछना पड़ सकता है अपने आप से। मैं अकेलापन इसलिए महसूस करती हूं क्योंकि आई फील अनलव्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जब मुझसे कोई प्यार नहीं करता, when I feel unloved, how do you feel? When you feel unloved, how do you feel? That is, again you will say, oh, when I feel unloved, I feel lonely. इसमें और क्या फील, और नीचे कहां घुसूं मैं? पर जाना है और नीचे जाना है। When you feel unloved, what do you feel? Maybe you feel unworthy. हर एक का अलग अलग हो सकता है। मेरे शब्दों को पकड़ के बैठ मत जाना। मैं जनरली एक बात कर रही हूं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। आई फील अनवर्दी, कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं पंखा चलाना भूल गई, पसीने आ रहे हैं। कोई प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शायद मैं उस प्यार के लायक नहीं। When you feel unworthy, how do you feel? कुरेदो, अपने दिल को कुरेदते जाओ। When you feel unworthy, how do you feel? जब आप करते जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि आप उसके जड़ तक, उसके रूट तक पहुंच गए हो कि मेरी असली परेशानी क्या है। When I feel unworthy, how would I say this? I feel unworthy, I feel useless. Okay? So when you feel useless, how do you feel? When you feel useless, you feel, why am I living? So when you say, why am I living? How do you feel? I feel sad. Why do you feel sad? When you feel sad, how do you feel? Oh, I feel like crying. But crying is not an emotion. Crying is an action. It's a verb.
How do you feel? When you feel sad, what could it be? I just feel sad. How do you feel? Okay. So how do you think उसका इलाज क्या है? खुद से पूछना है आपको ये सब. खुद से शीशे के सामने खड़े रह के या अकेले में बैठ के या अंधेरे में बैठ के या मेडिटेशन में बैठ के आपको ये सारे सवाल खुद से करने हैं. No, I just feel lonely. Okay, we are back to square one. I feel lonely. You feel alone. Same thing, lonely. So, okay, now that you're back to square one, what if you were not lonely? What would happen? क्या होता अगर तुम अकेले नहीं होते, लोग तुमसे प्यार करते और तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे साथ होते, तो बहुत अच्छा होता. मैं खुश होती और मैं हंसती खेलती, मुझसे प्यार करने वाला कोई होता. तब अपने आप से ये सवाल करो कि उसमें बुरा क्या होता. अगर तुम खुश होती तो उसका बुरा नतीजा क्या होता, और अगर तुम आज दुखी हो तो उसमें अच्छा क्या है. तो एक एग्जाम्पल देती हूं. somebody is on bed rest. okay, ये एक्चुअल ट्रू स्टोरी है, जो किसी की है, मैंने किसी से सुनी है. एक लेडी थी, उसे बार बार कैंसर रिलैप्स होता था. तो उससे पूछा गया कि ये बार बार रिलैप्स क्यों हो रहा है, इसमें तुम्हें कहाँ मजा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब क्यों हो रहा है. ये कहीं ना कहीं तुम चाह रही हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम चाह रही हो, इसलिए हो रहा है. तो क्यों हो रहा है. तो उसने कहा, जब मैं बीमार होती हूं ना तो मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता है. अगर तुम ठीक हो जाओगी तो क्या होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा, मैं जी सकूंगी. तो बुरा क्या होगा, मेरा पति फिर काम पे चला जाएगा और मैं फिर अकेली हो जाऊंगी. इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो तकलीफ है, गुस्सा है, रिग्रेट है, गिल्ट है, उसकी जड़ क्या है. और तब एक बार जब बीमारी का पता चल गया तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है. आसान तो मतलब इलाज तो आपको एक तरह से कहूं तो एफर्मेशंस कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, हिप्नोथेरेपी कर सकते हो, कोई भी कोई और हीलिंग थेरेपी कर सकते हो. तो इस तरह से आपको अपने उस शैडो वर्क को अपना के, अपने उस नेगेटिव साइड को अपनाना है और उस पे काम करना है. जब तक वो नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई ट्रिगर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं, रैंडम एग्जाम्पल के बचपन में जब आप छोटे थे और आप नीचे से सीढ़ियों से घर जा रहे थे और अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आप बहुत डर गए. अब वो दोबारा तो नहीं हुआ, हो सकता है वो अनजान हो आदमी, या हो सकता है उसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, चोरी की हो सकता है कि वो कोई अपना हो, लेकिन आपके मन में 2 मिनट के लिए डर आ गया. 30 साल बाद कभी अगर कोई इस तरह का मौका दोबारा हुआ कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, लिफ्ट खराब है और लाइट चली गई, सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस जगह पर लेकर जाएगा, उस बचपन की याद में, और आप अपने हाथ में कोई छुरी, कोई डिओड्रेंट, कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ लोगे, या बहुत ध्यान से जाओगे या कहीं रुक जाओगे, क्योंकि वो याददाश्त, वो डर भी शैडो वर्क में आता है. तो आपके मन में बचपन से लेकर या किसी
कई बार कुछ लोगों के मन में पिछले जन्म के डर होते हैं, इनसिक्योरिटीज होते हैं। कुछ बच्चे पैदा ही ऐसे होते हैं कि जन्म से उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो इनसिक्योर होते हैं, या वो हर चीज से जलते हैं, या हर एक के ऊपर पावर आजमाना चाहते हैं, खुद को हमेशा पावरफुल जताना चाहते हैं। तो वो जो पावर जताने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी एक डर है, वो इनसिक्योरिटी है, वो डर है। तो इन सब चीजों को अपने अंदर एक एक करके मेडिटेशन में या लिख के या अंधेरे में, मतलब रात को सोते वक्त बिस्तर में, जैसे भी आप ठीक समझो, उस तरह से आपको चाहिए कि इन चीजों को आप हैंडल करो। अब रोज जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में, हो सकता है कोई नई चीज सामने आ जाए, आप बाजार गए और वहां किसी ने आपके साथ बदतमीजी की और आपको इतना गुस्सा आया, वो कोई खास ऐसी बात नहीं थी, बस किसी ने धक्का दे दिया या किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसके मुंह पे तमाचा मार दिया। ये भी शैडो वर्क है, ये भी योर शैडो साइड, मतलब आपकी परछाई, आपका अंधेरा काला साया। तो इसे आपको हील करना है कि भाई मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, ठीक है हो जाता है, मुझे तो बहुत आता है गुस्सा, तो आता है। जब हम जनरली, अगर कोई हमसे सवाल पूछता है ना, जरा सी बात थी, इतना गुस्सा क्यों आ गया तुझे, अरे हाँ तो क्या करूं, कब तक सहूं, कब तक चुप बैठूं, सारी उम्र तो चुप ही बैठी हूं, सारी उम्र सबकी सह सह के थक गई हूं, अब नहीं होता मुझसे। हाँ, लेकिन सारी उम्र जो सहा, वो आपके दिल के अंदर इतने सारे अंधेरे कोने बना गया कि उसका उपचार करने की जरूरत है। आप सोलमेट अप्लाई कर सकते हो, हिप्नोथेरेपी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपको खुद को समझना है। हम अक्सर बोलते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं है। कैसे समझेगा? क्या आप खुद को समझते हो? क्या आप जानते हो कि आप ऐसे क्यों हो? हर चीज का जवाब हो सकता है आपके पास ना हो, तो पहले अपने आप को समझो, हर चीज का जवाब हासिल करो, उसका उपचार करो। उसको वक्त लग सकता है। ईगो खत्म हो गई है और अब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट खत्म हो गई है। करियर में कंपीट करने का मन नहीं करता, अच्छा इंसान बन गया हूं। लोग फायदा उठाते हैं। लोग जो फायदा उठाते हैं, हिली बॉय डोगरा, उससे तकलीफ होती होगी ना। लोग उठाते हैं फायदा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब आप अच्छे इंसान बन जाते हो ना, तो दुनिया फायदा उठाती है, और तब एक समय आएगा जब आप खुद को माफ नहीं कर सकोगे कि मैंने लोगों को अपना फायदा उठाने क्यों दिया। तो जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो उनसे कहो, आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा फायदा उठा रहे हो, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं कर देता हूं बट इसके बाद नहीं। डू दैट, लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। when you are striving to love yourself, forgive yourself and working on your shadow work, जब आप इस तरह अपने shadow work को हील करने, उपचार करने निकलेंगे, तो ऐसे ऐसे किस्से होंगे आपके साथ। कैटलिस्ट, जो लोग लॉ ऑफ वन देखते हैं उनको पता है मैं क्या कह रही हूं। ऐसे ऐसे रैंडम कैटलिस्ट लगेंगे, ऐसे ऐसे किस्से होंगे जो आपको परखेंगे। अच्छा, भगवान बोलेगा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लो, ये भी लो, वो भी लो, ये भी फायदा उठाएगा, वो भी फायदा उठाएगा, ये आके गाली दे जाएगा, वो आके तुम्हारा सब्र आजमाएगा। लो, अब बनो अच्छे इंसान, तब पता चलेगा कि आप सफल हुए या नहीं। ये आपको बार बार करते रहना पड़ेगा और इसमें सालों लग सकते हैं, सालों।
क्योंकि कैटलिस्ट आते जाएंगे, जहां कैटलिस्ट आया वहां फिसले और फिर आप बोलोगे ओ शिट, मुझे तो एक अच्छा इंसान बनना था, मुझे तो पेशेंस रखना था, गुस्सा आ गया, मेरा सब्र टूट गया, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। क्यों सब्र टूटा, क्यों गुस्सा आया, क्या वजह है इसके पीछे? एक चीज याद रखना कि जब आप शैडो वर्क करते हो तो आपके सामने जितने लोग हैं वो लोग कहा जाता है कि हम सब एक दूसरे के मिरर हैं, शीशा जिसमें शक्ल देखते हैं। तो जो आप हो वही दूसरा है, जो दूसरा है वही आप हो। तो अगर आपको सामने वाले में कोई चीज बुरी लग रही है तो वो चीज दरअसल आपके अंदर है। अगर आपने कभी चीनी नहीं खाई होती तो उसकी मिठास का अंदाजा नहीं होता, कभी करेला नहीं खाया होता तो उसकी कड़वाहट का अंदाजा नहीं होता, कभी आपको किसी से जलन नहीं हुई होती तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाला आपसे जलता है। मेक सेंस? लॉजिकल सेंस? अगर आपको किसी से नफरत नहीं हुई होती तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला आपसे कितनी नफरत करता है। तो इसका मतलब सामने वाला जो कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो पहले हमारे अंदर के उस काले कोने को साफ करो। जैसे कहते हैं घर के जाले हटाना, इस तरह से अपने दिल के जाले हटाना, दिल की डस्टिंग करना, उसको कहते हैं शैडो। आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल और आपकी समझ में आया। और या आई थिंक that's enough for today and I think that's what it is. एंड हाँ, अगर कोई सवाल अगर आपके बाकी रह गए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या सैटरडे को मैं एक्चुअली कल या परसों पता चला है सतीश कौशिक के मर्डर के बारे में, तो कल या परसों शायद मैं लाइव करूंगी उनके मर्डर को लेके। तो थैंक यू सो मच। तो तब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं उसके बाद एंड में, तो वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? थैंक यू सो मच। एंड